नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं नेशन नाउ पर, नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Ji, wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please जरूर सब्सक्राइब करें. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Yes. And by the way, can you please correct that header? The header is Mr. Akhilesh Yadav has asked Yogi ji, why are you closing schools? आप लोगों ने वहाँ लिखा है why are you closing SC? लोगों को लगेगा कि why are you closing the Supreme Court? जरा प्लीज चेक कर लीजिए, जो हेडर्स हैं प्लीज चेक करें. The last header is why are you closing schools? Can you please check it? Thank you very much. So Pradeep ji, great order for the Congress, especially Mr. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and everybody else. उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि भैया देखो, ये आपने कैसे ले आए, आप इसको कोर्ट में कैसे ले आए? अरे अजीब गरीब मसला है. You see, the point is the director of enforcement, there is an enforcement directorate, they can only act upon an FIR filed by some other agency. बिल्कुल सर. किसी और एजेंसी ने अगर FIR फाइल किया है तो उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. Exactly. लेकिन पहले और पैरेलली दोनों की इन्वेस्टिगेशन साथ भी चल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन जो दिल्ली EOW है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है. मेरा ये कहना कर क्या रहे हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. And probably they have not mentioned that in the court. Yes. So definitely the judge ने यही पूछा कि where is, on what basis, where is the predator offense? Yes. जो पहले वाला offense कहाँ पर? Predicate offense का. Yes, कहाँ पर है? Yes. And there is no cognizance. The judge found there is no cognizance, and we are not going to take cognizance in this particular. Yes. Yes, and it is in fact rejected the ED complaint. Rejected, in simple terms, rejected the ED complaint. Now this after harassment to Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. आपने 10-10 घंटे एक means how many days they had come to the ED office. Yes. तो after all justice has to prevail. I mean, उन्होंने ये कहा है कि भैया प्राइवेट सिटीजन की कंप्लेंट है, उसके आधार पर आप जो है लोगों को मेरे कोर्ट के सामने ला रहे हैं. हाउ कैन आई इवन लुक एट योर आर्ग्यूमेंट्स? अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया. उनका कि भाई ईडी का ये रोल है और अभी तक उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है. जज साहब ने कहा पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसके बाद आइए वापस. अभी आपका जो केस है वो बाहर है. दैट्स इट. refuse, reject कर दिया. ED complaint has been rejected actually. ED complaint has been rejected and I am surprised Pradeep ji at all our other channels. Yes. जो mainstream media के जो channels हैं वो कह रहे हैं it's only a technical thing, case is not over, this that. अबे यार order पढ़ लो ना भाई. Temporary release मिला है. I mean, so they want the ED to again pursue and file more FIRs. नहीं, ED says they will go to the high court. ऐसा बोला उन्होंने. भाई शौक से जाओ, that is your right, जहाँ मर्जी जाओ. But the fact remains, this particular court, the Rouse Avenue court, lowest court है अभी, सबसे छोटा कोर्ट जो होता है इसमें, उन्होंने जो PMLA कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. मतलब बिग रिलीफ फॉर राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है. इसमें कोई दो राय नहीं है. प्रदीप No, जी? but this is definitely what you call the courts have to be show its power wherever this kind of because courts are not political courts. Yes. आप political courts उसको बनाना चाहते हो, but there are some judges above all these kind of things. They are not going to bear any kind of political pressure on them. Yes. This is judicial courts, and it has to act like judicial courts. It has to act people in power misusing their rights and filing cases against people, especially where opposition is concerned. भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी थी, उसके आधार पर आप कोर्ट पहुंच गए. देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग. मतलब प्रोसीजर होता है ऐसा. आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप देखें कि अगर इन दोनों लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ आप जो मर्जी करना हो करिए, और अगर दोषी नहीं है तो क्यों तंग कर रहे हो लोगों को यार. मतलब सीधी सादी बात है. इट्स नॉट डन.
That's what I think. Anyway. See, where the majority of the people have voted for me, we respect that particular mandate of the people. Yes. But the independence of judiciary has to be maintained. Yes. Now you can't bow before your political masters. They are not a political masters. No, they're not. When the whole world, whole country says that EC's election commission is independent, it has to act independently. Judiciary is independent. It has to show its statutory independence. If you don't show, then it will be political courts. और ये प्रदीप जी पहली बार हुआ कि पीएमएलए कोर्ट ने ईडी का पहले ही पड़ाव पे रिजेक्ट कर दिया केस। अरे भैया जाओ जरा इन्वेस्टिगेट करके आओ। Sir, और पहले ईओडब्ल्यू का जो प्रेडिकेट ऑफेंस है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का, उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पे। मतलब ये तो कुछ मेरी समझ के बाहर है। जितने टॉप लॉयर्स है, जितने उनका कहना है कि ये जितनी जो ईडी के सिलसिला चल रहा है, that somebody has to rein in, and I don't think the governments are going to rein in. No, because it benefits the suits the government. Now my point is, here the judiciary has to intervene. The judiciary has to put foot down and say we are not going to tolerate nonsense. Pradeep ji, where does the problem lie? The problem lies in the Khanwilkar judgment. 3 साल पहले खानविलकर साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे और आज की तारीख में वो लोकायुक्त है, लोकपाल है, वो लोकपाल है हिंदुस्तान के। आई थिंक ही वाज रिवॉर्डेड फॉर दैट पर्टिकुलर जजमेंट बाय द पोस्ट ऑफ लोकपाल। उन्होंने ईडी के जो पहले पावर्स थे उनको 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। उनका ईडी कैन डू एनीथिंग इफेक्टिवली, दैट वाज अ 3 जज बेंच। उसके बाद प्रदीप जी 2 या 3 चीफ, दिस इज द थर्ड चीफ जस्टिस हु हैज कम, उन्होंने प्रॉमिस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू हियर द अपील्स ऑन दैट पर्टिकुलर जजमेंट। सर आज तक नहीं हुआ, आज तक सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट हर्ड दैट मैटर। मेरा यह कहना है कि ये हो क्या रहा है, दिस इज नॉट डन। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर एब्सोल्युटली नॉट डन सर। जो पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स द कांग्रेस वेरियस पार्टीज हैव गिवन वेयर the ED and CBI is concerned. Yes. Dismal, absolutely disgusting. Dismal, absolutely Yes. dismal. You're right. So, sir, shall we go to, I think Bilkul. we have Mr. B.N. Kumar with us. Yes. And I think a couple of other guests also with us. Can we go across? B.N. Kumar sahab, namaskar. Mr. Daruwala also is there. B.N. Kumar, I can't hear you here. B.N. Kumar, can you Okay, say hi, something? Can you say hello? B.N.K. Hello, hi. Hi, B.N. Kumar, how are you? अरे दारुवाला साहब, how are you, sir? दारुवाला साहब. Good evening. Can you hear me? I can hear you and I can also see you. We can hear you. I believe you are in Lucknow. Are you in Lucknow right Yes, now? sir. Wonderful. Right now, I'm in Lucknow. We Yeah. can hear you. The Wonderful. world can hear you, Mr. क्या Daruwala. बात है। और अशोक यादव साहब, समाजवादी पार्टी, हाउ आर यू सर? ऑलवेज अ प्लेजर। I'm fine. अरे साहब, अशोक यादव साहब से जो बात करने में मजा आता है सर, मैं क्या बताऊं। अशोक यादव साहब, ऐसा लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से सीधा अभी सुप्रीम कोर्ट से आए। अभी या राहुल एवेन्यू कोर्ट से आए, राहुल गांधी का केस आर्ग्यू करके। कमाल है सर, कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। लेकिन अशोक यादव साहब, ये तो क्या हो गया, तो उल्टा हो गया मसला। अब ये तो राहुल एवेन्यू कोर्ट ने, पीएमएलए कोर्ट है सर, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट है वो है राहुल एवेन्यू में। उन्होंने कहा केस कहां है? जो नेशनल हेरल्ड का केस था जिसको लेकर के इतनी डुगडुगी बजा रहे थे सब लोग, उनका भाई केस कहां है? वेयर इज द केस? हाउ कैन द ईडी टेक एक्शन ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट जज साहब हैज सेड। नंबर 2, ईडी कैन ओनली एक्ट इफ देयर इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, and that predicate offense has to be investigated by a properly designated agency, like for example CBI or Economic Offences Wing. तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली ईओडब्ल्यू का जो केस है उसको आप इन्वेस्टिगेट तो करिए हमारे पास आने के पहले। अशोक यादव जी आप बताएं, बट दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर राहुल गांधी नेशनल हेरल्ड केस में, बिकॉज अभिषेक मनु सिंघवी साहब आर्ग्यूड ऑन दीज टेक्निकल ग्राउंड्स। एंड नंबर 2, एज ही सेज, यार एक पैसे का लेन देन दिखा दो, एक पैसा इधर से उधर गया हो, नॉट वन पैसा हैज चेंज हैंड सर। अशोक यादव जी अब आप बताएं सर प्लीज, आई वुड लव। नहीं, देखिए जिस तरह से हमारी जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस तरह से और ईडी के साथ साथ जो एक्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जी, ये इन ऐसे जो मतलब एक्ट ऐसे हैं जिसमें हर व्यक्ति को ईडी चाहे तो डिटेन कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है जी। और इसी एक्ट का दुरुपयोग ये मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये लगातार इस्तेमाल कर रही। और विपक्ष के नेता जो सरकार के खिलाफ रहते हैं
राजीव जी, जब तक वो सरकार खिलाफ बोलते हैं तब तक ईडी पीछे पड़ी रहती है, और जैसे ही वो सरकार या पार्टी में आ जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, ईडी तुरंत वहां से हवा हो जाती है, गायब हो जाती है ईडी, सारे पीएमएलए वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। दुरुस्त बात। महाराष्ट्र का ही आपका उदाहरण है, जिसको लेकर के फडणवीस साहब, मोदी जी क्या क्या कहते थे अजीत पवार को लेकर के, लेकिन जैसे ही वो गठबंधन में आए उनको क्लीन चिट मिल गई बहुत सारे मामलों में। तो इस तरह का चीज अगर ईडी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कहने पर, तो ये मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा दुरुपयोग एजेंसियों का ठीक नहीं है। और देखिए जुडिशरी में भी एक इस तरह का, अगर कोई जज इतना बड़ा अगर कलेजा एक तरह से दिखाता है, अगर हम उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में यूज करें, कि सरकार के खिलाफ जाकर के इस तरह से मतलब जज ने फैसला दिया, तो ये जज को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो जुडिशरी में भी बहुत सरकार का प्रेशर है। और जिसको लेकर के आपको याद होगा 4 जजों ने किस तरह से पीसी की थी, जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जोसेफ कुरियन, इस तरह के 4 जजों ने सरकार के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो उस समय के जो तत्कालीन सीजेआई थे जस्टिस दीपक मिश्रा। तो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि जुडिशरी पर भी है। और राहुल गांधी वाले केस में जिस तरह से जज साहब ने कहा, और उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के प्राइवेट एक उस पे कंप्लेंट पे इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग, हमारे जो है सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप का जो सिंडिकेट का जो मतलब इलीगल ट्रेडिंग और जो जहरीला कफ सिरप, इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए का इलीगल ट्रेडिंग हुई, लेकिन आज तक सरकार न तो ईडी एक्शन में आई, न तो योगी सरकार एक्शन में आई, न तो कोई एक्शन में आया। लेकिन अभी तो शुरू हो गई ना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जहाँ वास्तव में करप्शन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन सर अभी कफ सिरप का जो वो जो कफ सिरप में जो कोडीन पाई गई है, उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। मैंने सुना ईडी ने 3 या 4 जगह पे रेड किया है, ये सुनने में आया। अब असली है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो तो आप बताएंगे अशोक यादव। बट अशोक यादव जी, ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के आप जो जिक्र किए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्टडी इंडिपेंडेंस जुडिशरी को दिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल केसेस ऑन द राइज, 121 ऑफ ईडीज लास्ट केसेस 115 ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर है। सीबीआई के लास्ट 124 केसेस में 118 ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर है। तो संजय राउत वाले केस में भी बार बार हर डेट पे ईडी पीएमएलए कोर्ट पूछता ना, वेयर इज द एविडेंस, तो ईडी बोलते हैं नेक्स्ट हियरिंग, और नेक्स्ट डेट करते करते 3 महीने निकाले। 3 महीने के बाद आखिरकार पीएमएलए कोर्ट फुट्स डाउन और बेल दिया। तो वो एक केस था, ये एक केस है। तो क्या आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली जुडिशरी इज शोइंग इट्स इंडिपेंडेंस? अशोक यादव जी, देखिए जुडिशरी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अधिकार न्यायपालिका को, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए गए हैं, मुझे लगता है कि इतना अधिकार किसी भी संस्था के पास नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की जो फ्रीडम को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से लगातार दबाव दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए गवर्नर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि एक टाइम बाउंड दिया था कि जो गवर्नर्स जो है, किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अध्यादेश है या बिल है, उसको इतने टाइम बाउंड में उनको आगे फॉरवर्ड करना है। राष्ट्रपति को भी दिया गया था टाइम बाउंड। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ ऐसे मुझे जो याद है आर्टिकल 317, जो कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक आगे जा सकता है, बस उसको ये लगना चाहिए कि संविधान का वायलेशन हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कम से कम आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका प्रदीप जी सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट अगर आगे बढ़ करके सरकार के ऊपर इस तरह से मतवाला हाथी जैसे होता है, सबको रौंदता हुआ चला जाता है। आज मोदी सरकार इस तरह से सत्ता के चकाचौंध में, सत्ता के अहंकार में इतना मतवाली हो चुकी है कि वो सबको कुचलने पर आमादा है। इलेक्शन कमीशन को कुचलने पे आमादा है, ईडी को कुचलने पे आमादा है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक को कुचलने पर आमादा है मोदी सरकार का मतवाला हाथी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो अंकुश है उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है सर, ये तो लोएस्ट कोर्ट है, अभी पीएमएलए कोर्ट है। आई एम श्योर द ईडी इज प्लानिंग, जो खबर आ रही है, ईडी इज प्लानिंग टू गो टू द दिल्ली हाई कोर्ट। एंड अभी तक जो वेरी फ्रैंकली अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज नेवर रूल्ड अगेंस्ट द ईडी। मुझे लगता है केस रिस्टोर होगा दिल्ली हाई कोर्ट में जाके। आई एम ओनली गोइंग बाय द प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पहले जो केस आ चुके हैं, उसके बेसिस में बोल रहा हूं। सो परहैप्स द सेलिब्रेशंस आर टू प्रीमेच्योर, बट द फैक्ट इज, एंड दिस इज अ मेजर फैक्ट बाय द वे, दारूवाला साहब,
नाउ यू कांट से दैट राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी आर आउट ऑन बेल, क्योंकि अब तो केस डिसमिस हो गया। मतलब पीएमएलए केस जो था उनके खिलाफ वो तो डिसमिस हो गया। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि बेल पे है, जमानत पे है। दरवाजा साहब आप बताएं प्लीज। Exactly. Over here, as you said, the celebration is premature. Over here, the way जो आनंद फानंद के अंदर ये जो न्यूज चलाई जा रही है कि रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड ऐसा है कि जब एक एफआईआर ऑलरेडी एक प्राइवेट व्यक्ति के दर्ज किए हुए इसके ऊपर इंक्वायरी चली है, उसके रहते हुए वही केस के ऊपर एक और इंक्वायरी नहीं हो सकती। ओवर हियर आपको मालूम है इंडिया में अगर वेरियस केसेस अलग अलग कोर्ट में चले हैं, तो द दिल्ली कोर्ट in our petrol dealer association case also we had put cases in various courts in the state. वो सारे केसेस को इकट्ठा करके दिल्ली हाई कोर्ट ने एक साथ उसको चलाया। तो इसके अंदर एक टेक्निकली है क्या सिंपल ऑन अ सेम कॉज कोर्ट कैनॉट रन केसेस इन वेरियस बेंचेस, इसलिए इसको एक जगह लाया है। बोले जब इसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू है, चार्जशीट के लिए पूरी तहकीकात चालू है, तो एक और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो आज उसको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं है। रिजेक्ट हो गया, बाहर उठा के फेंक दिया और जज ने अपनी हत्ती की छाती बताई। लेट अस नॉट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग too early, because I am telling you over here, I do not know, I'm not a lawyer like Pradeep sir, but over here as a layman what I can understand, the Associated Press Journal which was running the Herald in the 1926 when Pandit Jawaharlal Nehru at his time, and at that time this journal was really doing a good job at the time of freedom, but subsequently it went into loss, it was on the verge of shutting down। मगर इसके चलते हुए जो 60 साल की सरकार ने ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको बॉम्बे में, दिल्ली में प्रॉपर्टी वर्थ 5,000 करोड़ दी है। ये जनता को आप नहीं बता रहे राजीव सर। लेकिन सर वो प्रॉपर्टी में ये नो आई विल हैव टू इंटरप्ट बिकॉज़ यू आर रॉन्ग, बिकॉज़ यू आर रॉन्ग, you are wrong sir। The PMLA court has said very clearly, Mr. Daruwala, please understand sir, you cannot present legal facts which are not true। Legally the ED cannot file an FIR on its own, the ED is bound to investigate। I am not going on the jurisdiction of ED। Sir please ED के sir excuse me, आपने जो ED के बारे में बोला I need to clarify। ठीक है, बोल दिया ना। No sir, no and no, again no, I can't leave it at that, because ED can only investigate where a predicate offense has already been registered and investigation has taken place। ED comes only there। The EOW Delhi, sir, EOW Delhi, the ED was at fault in court। They did not even reveal that the Economic Offences Wing Delhi has already registered an FIR in this case, which is why the judge lost it। He said, where is the predicate offense? I understood। You have to investigate that first। I am not refuting Rajiv sir। तो अब आप बोलिए सर, अब आप बोलिए, Why are you losing it? Why are you losing it? I'm not losing it because you were shouting, so I increased my volume just to put you down। I said, let you can see the case again, you can see this again and take a look। Only when I start speaking, बोलिए, will interrupt me। सर बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए, my voice is not going सर, to the बोलिए, your voice is going, sir, your voice is going all over the world, I can assure you। People are waiting to see what you say। अब आप बोलिए। You purposely do it so I lose the link। I will tell you one thing। I am not that talented sir, इतना talented नहीं हूँ मैं। People understand what has happened। हाँ, and this is the fact, and this fact I am not distorting, because over here the reason I am angry today is इसको ऐसा celebration किया जा रहा है। ऐसे मीडिया के अंदर various channels I am going where Congress is already celebrating and bursting crackers, and so ED केस हार गया और अब ये डिपार्टमेंट बंद करने की आवश्यकता है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर, हेराल्ड केस इतना लार्जर देन लाइफ है सर, इसको जनता जनमानस ने जानना चाहिए। इनकी जब सरकार थी ये 60 सालों में नेशनल हेराल्ड को बॉम्बे में और दिल्ली में
thousands of crores of property. Please check the facts. If I'm wrong, you can tell me on your prestigious channel. I am your guest. If I'm wrong, you can correct me. Point number one. Point number two. Now, if the company is in loss, if the organization is in loss, and if this NGO, if there's a non-profit making NGO is in loss, or this organization, whatever you call it, so what happens in this case? You return the properties back to the government. The government will decide whether you give it to Mother Teresa's organization, or you give it to the Cathedral Church, or you give it to Don Bosco. That doesn't mean you take it over by mere 50 lakh rupees. Over here, I can assure you, Pradeep sir, हमारे इतने एक्सट्रीम यहाँ पे जो वकील जी, साहब जी, हैं, जी। वो तो 55 lakhs दे सकते, और ये हेरल्ड को वो लोग टेक ओवर कर सकते, दारूवाला साहब। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज में उनको सालाना 900 करोड़ रुपए का उनको रेंटल इनकम हो रहा है साहब। अभी यहाँ पर आप कहते हो ना मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये पे मिस अप्रोप्रिएशन का Sir, तो I haven't भंडार said है, a thing. I have not said ये it. तो दारूवाला भंडार है साहब, सर। Where have I said दारूवाला that? साहब, बात on बोलिए ना, on सर। the onset, आज का जो निर्णय है of the court, it has clearly shown that we are not taking cognizance of ED complaint. We have Okay, done. rejected. We Beautiful. have rejected. Beautiful. एक और सुनिए ना, we have rejected the ED complaint. Now, जो आप कह रहे हैं कि misuse of central agencies, misuse of ED, you have encroached on personal liberty of राहुल गांधी जी. कितने बार उनको आपने ईडी के ऑफिस में बुला लिया, कितने बार 4-4, 5-5 घंटे, कितने दिन ना, ये जो encroachment of personal liberties को कह रहा है, especially where opposition leaders are concerned, this at some time is going to be a big issue. दारूवाला साहब, you have to be answerable. आप political leaders को Sir, we'll deal with it. बोलिए We बोलिए will cross the bridge when we have to cross the bridge. We will deal with the repercussions. But over here, you mean to say, like, okay, conviction rate, as you gave the numbers over here, may not be 100%. 100%. They're not even 2%. बिल्कुल Not even 2%. It may not be, it may even be 5%. Not मगर even law में क्या 2%. कहता है? 2%. and But what does the maximum law opposition say? leaders. What does the beautiful fabric of the law say? एक भी आदमी निर्दोष अगर वो है, उसके ऊपर सजा नहीं होना चाहिए। Correct. भले 199 चोर अगर बच के Correct, जाते, sir. हाँ, तो हाँ. एक भी जबरदस्त. निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए। Beautiful. मगर इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करिए 60 साल में। 60 साल के अंदर जो प्रगति 10 साल में आज हम लोग ने देखे, ये सारा देश, ये That's a सारा separate issue. विश्व जो प्रगति Nobody देख रहा denies है, that, sir. ये You प्रगति believe इनके राहुल वक्त गांधी क्यों जी, गई? you know, इनको दारूवाला जमीन नहीं सर ये आपको प्रगति करने का। इमोशनल कंटेंट भी देखना पड़ेगा। द होल कंट्री नो दैट राहुल गांधी जी को कुछ मालूम नहीं नेशनल हेराल्ड के बारे में। आई डोंट थिंक ही इज द वे आपने उसको क्या क्या बोलते हैं कि ये है पप्पू है ये है, और आपने उनको लगातार 4-4, 5-5 घंटे इंटरोगेशन किया ऑफ समथिंग दैट ही नेवर न्यू। आई थिंक यू आल्सो नो इन हार्ट ऑफ हार्ट्स राहुल गांधी डजंट नो एनीथिंग अबाउट नेशनल हेराल्ड। अरे it's okay, one second, I cannot understand the tears that you have for Rahul No, Gandhi I don't have today. any tears. Over here हमारे प्राइम मिनिस्टर को, सर सुनिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को 18 घंटा एसआईटी के अंदर वो भी गलत गोधरा कांड के केस में उनको इंटरोगेट सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, सर। उनको इंटरोगेट नहीं, गलत किया, था, गलत उसके था। बारे में सर आप सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। बट गलत था, आई डिड गलत नॉट था, सी यू कंडेमिंग इट सर। गलत था। इट वाज Sir, रॉन्ग। we have condemned it so many आपने तो times. What are you उसको condemn talking? नहीं किया, प्रदीप Sir, सर। you were not It was even in wrong. politics at that time. When It was I was wrong. condemning it in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. When I was the head of Sahara News, I was condemning it every day. Sir, What are you talking? अरे Correct, दूसरी I'm बात है talking over सर। here. अच्छा दारूवाला साहब एक और राहुल चीज। गांधी जी को, अच्छा एक सेकंड, अच्छा अभी आप सवाल सुने। कांग्रेस का ये कहना है और उनके वकील साहब जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, मैं ये नहीं कहता कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। That property is not worth 5,000 crores. It must be worth 20,000 crores. 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर। पूरी बात सुन लें दारूवाला साहब। लेकिन जो यंग इंडिया लिमिटेड है और उसके पहले एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो थी, दे आर नॉन प्रॉफिट, नो लॉस ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट वन सिंगल पेनी हैज चेंज्ड हैंड्स। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं यू शो मी 1 पैसा विच हैज चेंज्ड हैंड्स। एक पैसा इधर से उधर हुआ हो आप दिखा दीजिए। वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट। अगर आप ये दिखाएंगे कि एक पैसा इधर से इधर गया, वी विल एक्सेप्ट आवर गिल्ट, वी विल प्लीड गिल्टी। आपने अभी तक एक चीज नहीं दिखाई है। दैट्स व्हाट मनु सिंघवी साहब से। अब आप बोलें सर प्लीज दारूवाला साहब। Correct. Yeah, very well. You take from Peter and give it to Paul. Young India जो है उसका उसके कर्ता धर्ता कौन है? आप ही मुझे बोलिए सर, उसके कर्ता धर्ता कौन है? सोनिया You take गांधी, from राहुल Peter गांधी, and जी you give हाँ। it to Paul and you say इसके अंदर
करेक्ट। तो ये है ना, यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी कंपनी यहाँ से लेके वहां पे दे रही है। सर लोग इतने बेवकूफ नहीं है। सी इट्स ओके, टुडे द थिंग इज गॉन इन योर फेवर, you are enjoying, means not you, I didn't mean to say you all, this panel, they are really relishing it, they are cherishing it. But I will tell you over here, Herald case is a very strong case, and over here I do not want to be a judge, but I am telling you over here, यहाँ पर conviction 100% होने वाला है। The judge, in his view, in his knowledge, he may be competent enough and he is sure enough। क्या मुझे मालूम है, in a case where I appeared, they said you cannot have the same cause in various benches in various cases across the country। Yes. He said, I'm already hearing this on economic offense, Delhi police, so I don't need to have entertained another case, simple as that। But that doesn't mean But that case is not come. That's the problem. Sir, the problem is you're not understanding. Sir, understand, over here we have a very reputed lawyer। अरे दारूवाला साहब, you're not ईडी की बात understanding कर the रहा हूं, matter. दारूवाला over साहब, here- you're not understanding the matter. मेरी बात सुनिए। सर, I have faced the ED. मुझे मालूम है ED का प्रोसीजर कैसे चलता है। आप किससे बात कर रहे हैं सर? मुझसे बात कर रहे हैं। There have been 114 cases against me, 114। अब उसमें से कितने बचे मुझे याद नहीं है। मुझको भी याद नहीं रहता, मेरा लॉयर अपने आप अपीयर करके आ जाता है वापस। Let me tell you very frankly, all cases by the way filed by the Congress government, not by you। ये भी बता दूं आपको। लेकिन सर, ईडी का मैटर तब शुरू होता है जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या सीबीआई या एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसका केस खत्म, या डीआरआई, उसका केस जब खत्म होता है तो ईडी का केस शुरू होता है। यहां पर दे हैव जंप्ड द गन, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग एट। दे शुड हैव फॉलोड प्रोसीजर। आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए। Let me tell you this, if ED had followed the procedure, Mr. Abhishek Manu Singhvi would have been very, very hard pressed to defend this. Let me tell you very, very frankly, notwithstanding the fact that no money has changed hands. Now, very frankly, मुझको तो ऐसा लगता है that the enforcement directorate may have helped Rahul Gandhi and Sonia Gandhi। कोई अंदर होगा वहां पे, उसने बोला होगा कि ये होने वाला है। भाई सीधी बात आपको बता रहा हूं मैं, अंदर कितने लोग बैठे हैं कि आपको खुद को नहीं मालूम। क्या बता रहे हैं सर दारूवाला साहब? अब बीएन के साहब आप बताएं। जैसे दारूवाला साहब कहते हैं, सर दैट प्रॉपर्टी जो है नेशनल हेरल्ड की पूरे हिंदुस्तान में, सर इट इज वर्थ ओवर 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं मानता हूं नोबडी कैन टच इट, यू कांट सेल इट, यू कांट ट्रांजैक्ट एनीथिंग ऑन इट। आप किसी और को दे नहीं सकते, विल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी तो है। आज की तारीख में भले ट्रस्ट के थ्रू आपके पास प्रॉपर्टी आ गई है। आपको लगता नहीं है that the Congress is being somewhat premature in celebrating? बीएन के साहब आ रहा हूं सर, दारूवाला साहब आपके पास आ रहा हूं। बीएन कुमार साहब ने अभी तक कुछ बोला नहीं। बीएन कुमार साहब बोलिए प्लीज। नहीं ठीक है, ये पॉलिटिकल सेलिब्रेट करने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि सब लोग करते हैं। कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है और बीजेपी उसकी खंडन कर रही है। ये तो पॉलिटिक्स में चलते रहता है। छोटे छोटे केस में छोटे छोटे केस जीते रहते हैं इन लोग, बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं। और द डे व्हेन राहुल गांधी was punished, wasn't BJP celebrating? Yes, it was. ये सब चीजें, ये सब तो होते रहते हैं। And the day Rahul Gandhi was evicted from his house, that day also they were celebrating. That day yes. also they celebrated. Yes. And the same BJP is not doing anything about the judicial corruption, lakhs and lakhs of rupees of money. Half what money was found in the back of the judge's house. On that, this BJP does not speak. And what happened to the case at all? Nobody knows about that. Nobody knows. अच्छा, उसको अलग से रखिए। इस केस में एक अभी मैं पढ़ रहा था वन स्टोरी ऑनलाइन कि ईडी कंप्लेंट के ऊपर ईओडब्ल्यू ने केस एफआईआर फाइल किया। ही समथिंग which is unheard of. Yes. And ED files a complaint with Delhi police. Delhi police registers an FIR, and Rahul and Sonia did not get the copy of the FIR, but they are not entitled for it. It is under PMLA. PMLA में जैसे आप कह रहे थे शुरुआत से ही, जैसे मनु सिंह ने कहा, पैसे की लेन देन तो कहीं भी नहीं हुई है। और ये ट्रस्ट में, यहाँ का ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है। आई एम ऑल्सो रनिंग अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू इवन माय ओन एक्सपेंसेस। आई एम नॉट अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। My other directors not allowed to draw salary. Only expenses, day-to-day expenses और donations आते हैं और हम लोग खर्च करते हैं, उतना ही। We don't get any benefit out of it. Yes. If at all, maybe I'll be getting some kind of a goodwill. ये जो Young India वगैरह जो है, अगर they spend money somewhere on the trust in some good cause, they would have got some mileage out of it. That's about it.
there is no trail of money. And ईडी के बारे में ये पहली बार नहीं हुआ है. There have been many cases which Supreme Court has thrown out of the window in cases where there is money trail was not proved. You have Arvind Kejriwal and company cases also. There is no money trail. Yes, there is no money trail. तो Yes. ये मनी ट्रेल तो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है. और दूसरी बात, ईओडब्ल्यू का एफआईआर उसको इन्वेस्टिगेट ईडी, हाउ कैन ईडी कंप्लेन एंड ईओडब्ल्यू, आई मीन दे आर But ED is not entitled. investigating. That ED is is another not issue we need to examine. ED is not why- entitled. The ED is bigger not question- entitled. एक minute, Pradeep ji. ED is not entitled to file an FIR on its own, or what is called an SCIR. They are not entitled to do that. They are not entitled to do that. But it is absolutely true, by the way, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी बोलते हैं कि जो ओरिजिनल कंप्लेंट है उसकी कॉपी नहीं मिली, वो नहीं मिलती है सर. ईडी के केस में नहीं मिलती है. एंड दैट इज देयर बाय इन द खानविलकर जजमेंट. खानविलकर साहब के जजमेंट में है ना सर 2023 की. बिल्कुल. सामने बिल्कुल, आपके. You can't do anything about it. That is the law. But- That is the law of the land at the moment. BN Kumarji, what is a matter of concern is opposition leaders being targeted. Now that is a personal liberties being encroached by. True. And nobody can be a blind spectator. Yes. Especially the courts cannot be a blind spectator. It has to act. जैसे अशोक यादव जी कह रहे हैं कि this court has shown some kind of strength within, कि immediately उन्होंने कहा कि where is, और ईडी को क्वेश्चन कर दिया. बाकी लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं मगर कुछ करते नहीं है. बहुत सारे केसेस में तारीख पे तारीख निकल जाते हैं और वो जो एक्यूज्ड है वो ही इज लैंग्विशिंग इन द जेल्स continuously. Some people come out in 3 months, some in 6 months, some has been 12 years. Now this is a matter of concern. Now the courts have to be beyond political courts. It has to be courts, judicial courts. Now how do you see this? It's very important because courts have to maintain their neutrality, their independence. They have to maintain their judicial independence, guaranteed to them, given to them by the Constitution of India. Constitution is supreme. कुछ भी कैसे, in fact, Pradeep and RKB and Yes. बाकी panelists, Supreme Court has already also observed in the Chandigarh mayor's election case. उसमें उन्होंने कहा था कि we will not remain blind spectators. Supreme Court is watching you. Supreme Court ought to watch each and every thing that is happening in the country and definitely take cognizance of it. The electoral bonds, they have taken cognizance. वोट चोरी वाला मामला जो है अभी तक no judicial authority has taken cognizance of it. They ought to take it. This will come one day or the other in front of the court because the vote chori, the SIR issue is still going on in front of the Supreme. I mean, hearing is still going on in front of the Supreme Court. So it is very important. The constitutional powers, constitutional rights of the people are upheld by the courts. जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली करेक्ट. अशोक यादव- जी अशोक यादव जी, अभी जी। जैसे दारूवाला साहब ने कहा कि ये तो पहला ही पड़ाव है भाई, इसके ऊपर आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? पर सेलिब्रेट तो करना बनता है ना सर. बड़े दिनों के बाद, कितने सालों के बाद कांग्रेस को सर कोर्ट के अंदर कोई जीत मिली है. अभी तक तो उनके केस सारे बाहर हो जाते थे, पहली बार मिली है. और दारूवाला साहब कहते हैं वो भी सेलिब्रेट ना करो. अरे ये इतना अन्याय तो मत करो दारूवाला साहब. नहीं, पहली कितने पहली बार नहीं हुआ सालों है. के बाद. पहली बार नहीं हुआ है. राहुल गांधी had won. Yeah, in an appeal, on an appeal he had won. Yeah. बट मेरा ये कहना है कि यार कुछ तो सेलिब्रेट करने दो. क्या हो गया? अब आप बताएं अशोक यादव साहब. मेरा ये कहना है जैसे ECIR होता है, जो ECIR फाइल होता है ना ईडी के केस में, वो मिलता नहीं है आपको. वो कोर्ट का ऑर्डर है सर. खानविलकर साहब की जजमेंट है, 3 जज बेंच की जजमेंट है सर, जिसके ऊपर अभी तक बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है 3 साल में. हर चीज पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस पर नहीं होता है. लेकिन उसके बावजूद केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और समटाइम द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रदीप जी ने अभी बताया, जहां पर लोग जो है 3-3 साल से 3.5 सर, उसमें मैक्सिमम जजमेंट, मैक्सिमम अगर मान लीजिए राहुल गांधी इज फाउंड गिल्टी, मैक्सिमम सजा कितनी है? 7 साल की, 7 इयर्स. 3.5, 4 साल लोग जो है जेल में रहते हैं, तब जाकर के कोर्ट बोलता है भाई वो 3.5 साल अपनी सजा काट चुका है, उसको बाहर करो. बट सपोज ही इज फाउंड इनोसेंट, उसके बाद में अगर ये मालूम पड़ता है कि भैया इसके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं था, तो वो 3.5 साल जो उसने जेल में बताए कौन वापस देगा सर? अशोक यादव जी आप बताएं प्लीज. नहीं, देखिए इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं, खास तौर से एक खास विचारधारा को न मानने वालों के साथ ही हो रही हैं. अगर जो भी संगठन या जो भी व्यक्ति इनकी विचारधारा के साथ रंग जा रहा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके विचारधारा के अपोज में है, इनके विचारधारा के विरोध में है, उसके लिए इतने सारे लेकुनाज हैं, इतने सारे कानूनी दांव पेच हैं
कि आप अगर उसमें उलझ गए तो फिर बड़े मुश्किल से आपको राहत मिलेगी। अभी हमारे यहाँ आजम खान साहब का प्रकरण एक था, जी। अभी देखिए पेरोल को लेकर के उनकी भाभी की डेथ हुई थी, जी। उन्होंने पेरोल के लेकर के अप्लाई किया। कम से कम एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस पे सुनवाई होनी चाहिए, पेरोल दे देना चाहिए। लेकिन राम रहीम के केस में आपको पता है हर चुनाव में उसको पेरोल मिल जाती है और जेलर जो रिटायर होकर भाजपा में शामिल हो गया। तो एक केस, एक सिंपल मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरह से कानूनी दांव पेच में विपक्ष के लोगों को फंसाया जाता है, विपक्ष के लोगों को उलझाया जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला ले तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। आपको अगर इस तरह का ईओडब्ल्यू या आपने बहुत सारी एजेंसियों के नाम बताए और आर्थिक अपराध को लेकर के जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर घोटाला अगर राजीव जी कहीं अगर देखने को मिलेगा तो जल जीवन मिशन में मिलेगा। जल जीवन मिशन का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि मैं आपको बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। सरकार जाएगी, घोटाले की परतें खुलेंगी। आप देखिए यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं, उनके गांव में भी जो है नल से पानी नहीं आ रहा है। दैनिक भास्कर अखबार ने उसका विश्लेषण किया जी। तो आप देखिए कागजों में हर जगह बन गया, पूरे रास्ते खोद के छोड़ दिए हैं। कहीं किसी गांव में मतलब 5% भी नल में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन सारा पैसा जो है इनकैशमेंट हो जा रहा है, पानी टंकियां लगातार गिर रही, कोई आर्थिक अपराध नहीं हो रहा है। इवन आपको मैं एक रिपोर्ट लेकर बैठा था इंडियन एक्सप्रेस की कि कुछ ऐसी 1 दर्जन कंपनियां हैं राजीव जी, जिसमें कंपनियों में HDIL प्रोजेक्ट है। इसने जो बैंक से लोन लिया था, सरकारी बैंक से 7,795 करोड़, 7,795 करोड़, और इसमें जो सेटलमेंट हुआ 285 करोड़ में, बैंक लॉस हुआ 96%। इस तरह से 1 दर्जन कंपनियां हैं जिनमें सरकारी बैंकों से जो लोन है, लोन के अमाउंट का 96% तक सरकार उनको छोड़ दे रही है सेटल अमाउंट, और वो कंपनियां बड़े आश्चर्यजनक रूप से अडानी उसको खरीद ले रहा है। अभी बताइए बैंकों का लॉस के लिए जिम्मेदार कौन है? बैंक लॉस जो हो रहा है तो हमारा आपका पैसा है ना। इन बैंक लॉस का लाभ किसको मिल रहा है? अडानी को मिल रहा है। लेकिन उसके लिए न ईडी है, न इनकम टैक्स है, नथिंग है, क्योंकि उसके साथ सरकार जेल में थे। एचडीएल वाले सारे जेल में थे सर। अशोक यादव जी, बात यह है कि आप एसआईआर का, और अखिलेश यादव जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया, बोले कि एसआईआर इज एनआरसी इन डिसगाइज। अखिलेश यादव जी ने एसआईआर और एनआरसी का किस प्रकार से तुलना जिस प्रकार से किया, बट एक अखिलेश यादव जी खड़े कांग्रेस के साथ, बाकी इंडिया अलायंस इज क्रम्बलिंग। अशोक यादव जी, इंडिया अलायंस पार्टनर्स आर क्रम्बलिंग। ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारा कैंपेन नहीं है, ये कांग्रेस का कैंपेन है। कल सुप्रिया सुले जी ने पार्लियामेंट लोकसभा में वो कही, आई हैव वन 4 times बिकॉज ऑफ द ईवीएम, आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट। तो एक के बाद योर अलायंस इज क्रम्बलिंग। अशोक यादव जी, फाइट पुट अप कैसे करेंगे आप? देखिए एसआईआर मुझे जहां तक याद है कि 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 ये इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ भारत में। उस गठन से लेकर के आज तक लगभग 75 ईयर्स हो गए। इन 75 ईयर्स में एसआईआर कभी नहीं हुआ। ये लोग खाली एक हाइप क्रिएट करते हैं कि 2003 में हुआ, ये हुआ। एसआईआर नाम की चिड़िया कभी हुई नहीं। हाँ, ये रिविजन्स होते आए हैं, रिविजन्स हुए हैं, 2003 में भी रिविजन्स हुए हैं, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं हुआ हो। और दूसरी बात, इस तरह का जो आप दूसरी चीज मैं कहने जा रहा था कि जो रिविजन्स होते हैं उसमें 2-3 चीजें होती है। इलेक्शन कमीशन नए वोटर्स को जोड़ता है, अनएलिजिबल वोटर्स को हटाता है, माइग्रेटेड वोटर्स को हटाता है, तो ये तो रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से एसआईआर के नाम पर एक 0.1% भी घुसपैठिया नहीं पकड़े जा रहा है, 0.01% भी घुसपैठिया नहीं पकड़े जा रहा है। जिस राज्य में एसआईआर हो रहा है उसकी पूरी पॉपुलेशन से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 0.01% भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन उस घुसपैठिया के नाम पर जिस तरह का लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिलोज बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, विपक्ष के वोटरों को नाम काटे जा रहे हैं, तो इस सारी अनियमितता को लेकर के समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश या बिहार जहां जहां एसआईआर हुआ, जैसे बिहार में हो गया एसआईआर, लेकिन वह बिहार में जो अनियमितता हुई एसआईआर को लेकर के कि जो लोग जिंदा थे जो वो मुर्दा बना दिए गए, और मुर्दा जो है जिंदा होकर कोर्ट चला गया। और राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जिन्होंने अपनी जो आपको पता होगा राजीव जी नियम कानून, राकेश सिन्हा जी ने वहां दिल्ली में वोट डाला,
और उसके बाद बिहार में वोट डालते हैं। जब मामला मीडिया में आया तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, डिफेमेशन केस करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 6 महीने यहां पर रहना अनिवार्य है किसी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। तो क्या डीयू से 6 महीने का छुट्टी लेकर के आए थे क्या बिहार में? तो अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का काम करेगा, ये जो मतलब क्लियर कट वायलेशन है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद भी एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई, एक नोटिस तक नहीं हुई, तो ऐसा चुनाव आयोग अगर इस तरह का काम करेगा घुसपैठिया के नाम पर, अरे घुसपैठिया पकड़ने के लिए तमाम एमएचए का जिम्मेदारी है, उसकी स्कीम से घुसपैठिया पकड़ने के लिए। और अगर घुसपैठिया का रिपोर्ट कार्ड जी कोई पकड़ा नहीं गया है सर। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे मैं आप सब लोगों की सहमति चाहूंगा, या पहले वही डिस्कस कर लेते हैं सर। आज 16 दिसंबर है सर, याद रखिए दारूवाला साहब, बीएनके साहब, अशोक यादव साहब, 16 दिसंबर 1971 जनरल नियाजी सरेंडर्ड टू द लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा इन ढाका along with 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। सबसे बड़ी विक्ट्री, आज तक कभी इतनी बड़ी जीत हिंदुस्तान ने हासिल नहीं करी। General Niazi surrendered, sir. That is the picture right there on your screens right now. December the 16th, 1971. What a red letter day for our armed forces. General Manekshaw was the Chief of Army Staff. Air Chief Marshal P.C. Lal was the Chief of the Indian Air Force. And Admiral S.M. Nanda was the Chief of the Indian Navy. Now, fantastic. So we must not forget that, sir. Let's never forget the sacrifices of these people. ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने अपने हथियार डाले हम लोगों के सामने, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा, एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं अशोक यादव जी, उसके बाद मैं सीधा जाता हूं दारूवाला साहब के पास। जो आंकड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का है 2004 से लेके 2014 तक 88,352 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया गया, पकड़ा गया और उनको वापस भेजा गया। ज्यादातर बांग्लादेशी थे, कुछ रोहिंग्या थे। आपको मालूम है 2014 से लेकर के 2025 तक कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया है? ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है सर 5,382, 5,382। तो दारूवाला साहब 88,000 घुसपैठिए पकड़े, इन्फिल्ट्रेटर्स मनमोहन सिंह साहब की सरकार में। आपके टाइम पे तो ओनली 5,382 सो फार दैट्स व्हाट द होम मिनिस्ट्री सेज सर। अब दारूवाला साहब आप बोले प्लीज, गो अहेड सर। एग्जैक्टली, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये सरकार की एजेंडा है। और जैसा यहाँ पर हमारे मित्र जो समाजवादी के हैं, वो लोग कह रहे थे क्या एसआईआर इतना बड़ा फरेबी काम आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मेरे पास रिकॉर्ड्स है, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट इन माय ऑफिस, बट आई कैन टेल यू ओवर हियर फ्रॉम लास्ट 30 years, right from the election commission was established till 2003, 2004, SIR regular intervals पे हर 2 साल 3 साल पे हुआ करता था, होता था। इट इज ऑन रिकॉर्ड। अभी मैं एक सब में बड़े सवाल आप लोग के सामने पूछना चाहता हूँ। मेरे मित्र ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज स्टैंडिंग अप एंड इट इज वाचिंग। SIR के बारे में उन्होंने कहा अगर उनको इतनी आपत्ति है तो 90,000 बूथ लेवल के नुमाइंदे, आज बिहार का जो इलेक्शन हुआ कल उसके 45 डेज कंप्लीट हो गए सर। मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ 45 डेज के अंदर एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी बूथ लेवल का इनका कार्यकर्ता, भले कोई भी पार्टी से हो, एक भी आज तक आक्षेप रजिस्टर नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1 नहीं हुआ। 45 डेज पास हो गए, ये लोग ने आज तक आक्षेप नहीं लिया बिहार के अंदर। पॉइंट नंबर 2, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 45 डेज के बाद में वीडियो रिकॉर्ड को क्यों डिलीट करता है। जब 1991 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी, माननीय नरसिम्हा राव जी के टाइम में ये 45 डेज का जो एक टाइमलाइन फिक्स हुआ था, जब भी तो वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग की प्रोविजन नहीं थी। वेल, टेक्नोलॉजी के चलते हुए वो वीडियो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी आई है। 45 डेज का एक टाइम फ्रेम दिया गया था। तो ये 45 डेज जो अभी आज के तारीख में 2025 में भी पास हो गया, एक भी इनके आदमी ने आज का रिकॉर्डिंग भी नहीं मांगा, आक्षेप भी नहीं किया। इसका मतलब कितना फेयर काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है।
पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अगर ये लोग को इतना प्रॉब्लम है एसआईआर से, डिलीशन से, तो ये लोग जब पार्लियामेंट के अंदर परसों जब डिस्कशन हो रहा था, होम मिनिस्टर जी जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये लोगों ने स्टेज आउट वॉकआउट क्यों किया? ये ये व्यासपीठ नहीं है डिस्कशन का, पार्लियामेंट इज द व्यासपीठ। वहां पर वो लोग वॉकआउट करते, इसके ऊपर थ्रेड पर मैंने कहा था इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है, होना चाहिए। करेंगे I agree with you. जैसा पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ था सर। Yes. ये वो व्यासपीठ है, वहां पर ये डिस्कस होना चाहिए था। Correct. ये लोग वो व्यासपीठ को यूज नहीं करते, मीडिया को, प्लेटफॉर्म को, अपने ऐसे बड़े बड़े चैनलों को यूज करके ये लोग वोट चोरी इतना परेशान करके छोड़ा था, क्योंकि इनको मालूम था ये लोग हारने वाले हैं, तो अपना हारने का जो एक जिम्मा है, ब्लेम किसी के ऊपर फिक्स करना है, तो इन्होंने अपनी हार की जो पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सौंप दी। दारूवाला साहब, I think Ashok Yadav ji wants to you intervene. want to respond? Ashok Yadav ji, very quickly. Quick response, sir. Ashok जी Yadav जी, ji. देखिए अभी दरवाल साहब ने बताया, अभी मैं 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट सबमिटेड टू ईसीआई। Yes. 18,000, नो एनी रिस्पॉन्स, नो एनी एक्शन हैज बीन टेकन बाय ईसीआई। नेक्स्ट टाइम है रामपुर, मिल्कीपुर बाईपोल इलेक्शंस में हमने वीडियो फुटेज टैग करके ईसीआई को सबूत के साथ, एफिडेविट के साथ सब कुछ करके दिया ना। एक सिंगल अधिकारी के ऊपर सस्पेंशन या कोई एफआईआर या कोई किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आप बताइए इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर कैसे कहेंगे? राहुल गांधी जी जब सवाल करते हैं तो कहा जाता है एफिडेविट लगा के दो। हम लोग जब एफिडेविट लगा कर देते हैं कंप्लेंट्स, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये चुनाव आयोग क्या चाहता है? चुनाव आयोग कैसे हमारे मतलब हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस राइट्स की कैसे, मतलब हम कहां जाएंगे अपनी सुनवाई करने? चुनाव आयोग को तो वाइस प्रेसिडेंट और देश की वाइस प्रेसिडेंट टाइप की इम्यूनिटी दी है संविधान ने, इसीलिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, हमारे देश की डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने अगर ये ठेका ले लिया है कि हम डेमोक्रेसी को कुचल देंगे, मोदी सरकार से पैसे बंटवा के मुझको चुनाव जितवाएंगे, विभिन्न नॉन गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आप इस तरह कोई स्कीम नहीं चला सकते राजीव जी। लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप पैसे बांटने की खुली छूट चुनाव आयोग दे देगा। चुनाव के दौरान आप 10-10 रुपए बांट दोगे। तो इस तरह का आप बताइए डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रहेगी, विपक्ष कैसे सुरक्षित रहेगा, बाबा साहब की वोट की ताकत कैसे सुरक्षित रहेगी? I want to दारूवाला साहब, राहुल गांधी जी ने खुले चेतावनी ऑन संडे दिया था। He named all the 3 election commissioners. बोले ज्ञानेश कुमार जी सुन ले, सुखबीर संधू जी सुन ले, डॉक्टर विवेक जोशी सुन ले, वी आर वॉचिंग यू, वोट चोरी हो रहा है एंड यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। ही अक्यूज्ड, जैसे अशोक यादव जी ने कहा, ईसी विद द बीजेपी वोट चोरी। अब पहले बार राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के नाम लेकर तीनों के पूरे पब्लिक रैली में इस प्रकार, हाउ डू यू सी दैट दारूवाला साहब? एग्जैक्टली देखो, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, उनकी जो एक मैच्योरिटी लेवल है, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा तो उतना आईक्यू लेवल भी नहीं कि मैं राहुल गांधी जी की आईक्यू को क्वेश्चन कर सकूं। मगर इन लोग वोट चोरी जब कहते हैं तो इनके पास 45 डेज का ओपन पीरियड था। दिया था ना, 18,000 एफिडेविट फाइल किए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने 2022 का जो बताया, देखो सर, समाजवादी जो है ना, इतने लेवल, एक जो लेवल के नीचे आके आर्ग्यूमेंट कर रहा है और इतनी झूठ बात कर रहा है सर। यहाँ झूठ बात, ये 2022 का ये जो बता रहे ना, ये 45 डेज का टाइम फ्रेम होने के बाद, राजीव सर उनको एक ही सवाल पूछो, 1991 के अंदर 45 डेज का विंडो टू द इलेक्शन कमिश्नर को ये किसने दिया था? और 91 से लेके आज तक के केरला में इलेक्शन कमीशन अच्छा काम करता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन चोर है, बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन चोर है, झारखंड के अंदर इलेक्शन कमीशन अच्छा काम करता है, वही इलेक्शन कमीशन पंजाब के अंदर फेयर एंड स्क्वायर काम करता है, सेम इलेक्शन कमिश्नर जो है वही सब जो है मध्य प्रदेश के अंदर खामियां करता है, वही इलेक्शन कमीशन आज आप देखो अपने उनके स्टेट्स के अंदर, पंजाब के, अपने जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन चोर है। ये इतना जो इनकी एक चूज एंड सिलेक्ट पॉलिसी है ना सर, ये इतनी ओपन होते जा रही है, और ये एक दिन इनका झूठ इन्हीं को लेकर लपेट के इनका झूठ इतना खराब एक्सपोज होने वाला है। और यहाँ पर जो हमारे मित्र है, वो जो एक एनजीओ चलाते हैं,
मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजीव सर, इफ यू अलाउ मी, प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। जो हेराल्ड का जो कंपनी जो है, वो जैसा मैंने कहा, टेक इट फ्रॉम पीटर एंड गिव इट टू पॉल। मेरे को एक बात पूछिए, एक अगर उनकी जो प्रेस लॉस में जा रही थी, इनकी एजेंसी, इनकी एनजीओ ने ओपन टेंडर क्यों नहीं किया? ये यंग इंडिया क्यों क्यों मिला? इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड ट्रस्ट सर। जैसा ये लोग बार बार पूछते कि ये कंपनी का टेंडर ये कंपनी को ही क्यों मिलता है? तो ये जो मैं तो 5,000 करोड़ कह रहा हूँ, आप 20,000 करोड़ कह सर रहे उससे भी ज्यादा है। ओपन टेंडर निकाल के और कोई कैथेड्रल यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं दिया? मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं लेकिन दिया? दारूवाला साहब 51 लाख से ज्यादा देने वाला भारत में कोई मिला ही नहीं क्या आपको? तो ये सब लोग जानते हैं सर, सर, privately ये held क्या trust। हो रहा है, ये अपीजमेंट कैसा हो रहा है। सर, private ये trust। जो भी घी है ना, ये घी इन्हीं के खिचड़ी में जाती है, और इसी को वंशवाद हमारे मोदी जी कहते हैं। सर प्राइवेट ट्रस्ट है इसलिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के सामने सारे एफिडेविट दिखाए थे, एंड दे सेड दे हैड फाइल्ड इट वेल विद इन नॉट जस्ट 45 डेज, विद इन 30 डेज। 18,000 एफिडेविट, जिसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ और सिर्फ 18 एफिडेविट्स पे रिप्लाई दिया, और वो भी रिप्लाई किसने दिया? डीएम साहब ने दिया ऐसा। और इलेक्शन कमीशन कहती है हमें मिला ही नहीं। और अखिलेश यादव जी ने हर एक को बांटा है, और उनकी वेबसाइट पे, समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे अभी है 18,000 एफिडेविट, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की रिसीट है कि रिसीव हो गए। तो मेरा ये कहना है सर, ये तो गड़बड़ है, यहां पर तो कुछ करना चाहिए। वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक समबडी शुड टेक कॉग्निजेंस कि ये क्या हो रहा है भाई। बीएन के साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। जी, ये जो एसआर के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, यादव साहब ने बताया था कि कंप्लेंट्स क्यों नहीं उठाए। अभी मिस्टर दारूवाला वो कह रहे थे, अभी एक समथिंग सरप्राइजिंग, आई विल से शॉकिंग आल्सो, रेवोल्यूशन हैज कम फ्रॉम नन अदर देन योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे 4 करोड़ 40 मिलियन नेम्स आर मिसिंग इन द वोटिंग इन द एसआई आफ्टर एसआई रिविजन। उनको 12 दिन का मोहलत है रिवाइव करने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। उन्होंने क्लियर कट अपने कार्यकर्ताओं से कहा, इसमें से 80 to 90% वोटर्स आर आवर वोटर्स। ही वाज टेलिंग दी अपोजिट पार्टी विद गवर्नमेंट। अब लोगों को जो सामने कार्यकर्ता बैठे थे उनको भी कह रहे थे कि आपके वोटर है। यूपी में इस तरह की चीज हो सकती है, तो बाकी स्टेट में हुआ तो उसके बारे में कोई अचंभे की बात नहीं है। दैट इज वन। नंबर 2, एंड दिस आई थिंक हैज टू बी टेकन बिट सीरियसली कि 40 million, 4 crore voter list, I mean, names are missing. It's pretty shocking, and none other than Yogi Adityanath has raised it. It is Yes. not an opposition person. Yes. So I think the entire SIR has to be taken with a pinch of salt. Sir, I there want is to one thing- ask you, BN Kumar ji, बात यह है कि other thing that Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji has been highlighting is immunity to the election commission. That creates a kind of suspicion in the minds of people कि ये immunity किसके लिए? For wrongful acts or perceived? Now how do you see that? इस प्रकार से immunity उनको देना election commissions को, how do you see that particular thing? नहीं, it is never happened earlier. अभी अचानक इनको इम्यूनिटी देने की क्या जरूरत पड़ गई है? एंड दैट टू आनंद पंदन में लास्ट मिनट पे आउट ऑफ द ब्लू दिस बिल हैज बीन ब्रॉट आउट आफ्टर राहुल गांधी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट वोट चोरी ना। ये पहले से नहीं थी ना, उससे पहले कर सकते थे अगर इम्यूनिटी देने होते तो। अचानक क्यों दिया? दैट डेफिनेटली रेजेस सस्पिशन. As far as taking the names of the election commission members is concerned, Priyanka has been doing that during the Bihar rally. वो खुद डेली कह रही थी अपने इनके नाम लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर। राहुल ने ठीक है अभी तीनों का नाम लिया। राहुल तो बाकी और इलेक्शन ऑफिसर्स को भी एड्रेस कर रहे थे ना, वो ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, सबको कह रहे थे आप जो भी गलती कर रहे हो, अगर आपको ही सेड अगर एंड व्हेन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन बीएन के साथ एक सवाल है आपसे, बीएन के साथ हाँ आपसे एक सवाल है, मैं चाहूंगा दारूवाला जी भी इस पे बोले और अशोक यादव साहब भी बोले इस पे। सर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो गठन हुआ वो टेररिज्म के खिलाफ था और नार्को टेररिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा था। वो ये था कि जितने ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग डीलर्स का जो पैसा है वो टेररिस्ट के पास जाता है। ईडी शुड इन्वेस्टिगेट दैट। नाउ ईडी हैज फॉरगॉटन दैट ओरिजिनल चार्टर ऑफ इट्स। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ईडी का केस था किन के खिलाफ? अजीत दादा पवार के खिलाफ था। कहाँ गया वो केस? गॉड ओनली नोस। उसके अलावा हमारे जो क्या नाम है सर उनका, जो माशाल्लाह हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या नाम है? हसन अली, क्या नाम है उनका?
जो भी नाम है, हसन मुशर्रफ। हसन मुशर्रफ साहब, हसन अली मुशर्रफ साहब, उसके अलावा न जाने कितने और लोग हैं। इनफैक्ट देयर वाज एन ईडी मैटर इवन विद रिगार्ड टू मिस्टर एकनाथ शिंदे, वो भी कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है। किसी से अगर पता करो तो ये आता है कि केस क्लोज नहीं हुआ भाई, मतलब पेंडिंग है, तलवार लटके तुम्हारे सर पे बिल्कुल। और इत्मीनान रखो। कहने का मतलब ये हुआ। मेरा ये कहना है, डोंट यू थिंक इट इज हाई टाइम, देयर आर टू थिंग्स हियर व्हिच आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन, देन आई वुड लाइक टू गो टू दारूवाला साहब, देन फाइनली टू अशोक यादव साहब। Two things here. One, the election commission should have its own staff. Election commission should have its own secretariat. पहले क्या था, ये चलता था कि भाई आप टीचर्स को इस्तेमाल कर लीजिए, किसी और को इस्तेमाल कर लीजिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस्तेमाल कर लीजिए। सर, the elections have become so big now. ये पहले भी सजेशन आ चुका है, दारूवाला साहब ने सजेशन दिया था इनफैक्ट ये, that it is high time that the election commission should have its own staff. उनका खुद का स्टाफ होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, वॉट एवर बी द नंबर्स। 1 लाख एम्प्लॉय करो आप, 2 लाख एम्प्लॉय करो, जितने भी करो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आप टीचर्स को उठा लेते हैं, उन बेचारों को कुछ मालूम नहीं होता, दे गेट अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, दे कमिट सुसाइड, उनको बीएलओ बना देते हो, वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो यूजेज है, वो आखिर में आपको वहीं जाना पड़ेगा वापस, अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। दैट्स व्हाट आई थिंक। बीएनके साहब आप पहले बताएं। आई फुली एग्री विथ यू। इलेक्शन कमीशन जो पार्ट टाइम स्टाफ को यूज करती है, जिस तरह से सेंसस में हम लोग यूज करते हैं टीचर्स को वगैरह को, दैट वर्क इज टोटली डिफरेंट, दैट एन्यूमरेशन इज डिफरेंट। ये बीएलओ बनाना, ये करना, वो करना, दैट इज नॉट प्लस। उसमें क्या होता है, ये इन दिस प्रोसेस द एक्चुअल वर्क फॉर व्हिच दे हैव बीन एम्प्लॉयड, टीचर का रेगुलर वर्क इफेक्ट होता है, स्कूल्स का कामकाज के ऊपर असर पड़ता है। इसके लिए आई एग्री विथ यू कि जितने भी जरूरत, अभी ठीक है, अभी आप समझो एक 100 टीचर को यूज कर रहे हो, अब 25 स्टाफ को यूज करो ना। अगर आपका परमानेंट खुद का स्टाफ होगा, आप उसको हर दिन को दौड़ा सकते हो, उससे काम ले सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी रिसोर्सफुल, दे शुड बी गिवन, allocation of funds should be given to that, and they should be able to function as a constitutional body independently. It's a pillar of the constitution, sir. As far as ED is concerned, as far as ED is concerned, definitely, because politicization of ED must stop. Not only politicization of ED, politicization of CBI, income tax, because आपको याद होगा उसको एक पिंजरे पे वाले केज पैरेट कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मनमोहन सिंह के वक्त। जी हाँ, CBI को। तो I mean, if you look at the things that are happening, Yes. same thing is happening. Number 3, most importantly, RKB and Pradeep and बाकी panelists, मोदी गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी है, they got support of all the allies. Yes. हर जगह उनका पर रूल है, majority of the state they are ruling. Why are they scared of this Congress that for them does not exist? हर टाइम चाहिए नेहरू गांधी, और नरेगा का नाम भी सेम कर रहे हो आप, महात्मा गांधी का नाम निकाल रहे हो। I mean, this is very silly joke. This is very silly. This is Darwala साहब आप बताएं सर, do you agree sir that the election commission should have its own staff, its own secretariat? Sir, now sir 150 करोड़ के ज्यादा हैं सर हम लोग। Very frankly speaking, you can't have a part-time BLO, कोई टीचर है बेचारा, कोई कुछ और है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्लर्क है, LDC है, UDC है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी प्रोवाइडेड with all the assets and all the personnel that he or she needs to conduct a free and fair election. What do you think, sir? Agree, I totally agree over here. प्रदीप सर ने अभी कहा क्या योगी आदित्यनाथ जी has raised an alarm over here that there are 4 crores name missing in Uttar Pradesh. 2024 में राजीव सर, प्रदीप सर, you are witness to it. Yes. मैंने कहा था our low turnout of BJP voters Yes. was the only reason that the names were missing. Yes. ये देखो, ये एरर होता है, नाम मिसिंग होते हैं, मगर सब्सिक्वेंटली अगर आप देखो तो ये जो सरकारी अधिकारी, इनको भारतीय जनता पार्टी के ही नाम नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग आएंगे तो इनका खाना पीना बंद होने वाला है। मोदी जी का फंडा बहुत क्लियर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 60-70 साल में ये ब्यूरोक्रेसी को जो खाने की आदत लगी है ना, वो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो उनको वो खाने नहीं 60-70 साल करके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जानबूझकर बीजेपी के वोटर्स का ही नाम मिसिंग है। इसलिए SIR इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर आपके मेरे हर कोई, हम सब लोग के नाम वो वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए। एरर्स होते हैं, बिल्कुल एरर्स होते हैं, इसके अंदर ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन जहाँ पे काम करता है वहाँ पे मिस्टेक होता है। और जैसा इन्होंने एक सजेशन दिया था, आई टोटली अग्री, इलेक्शन कमीशन का खुद का स्टाफ Yes. होना चाहिए। Yes. 1 लाख लोग को एम्प्लॉय करो,
जैसा मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 लाख लोगों को लाऊंगा, ये काला पैसा, काला धन ढूंढ के निकालूंगा, और जो पैसा ये करप्ट लोगों ने स्टैश्ड अवे है उनको निकाल के मैं जेल में डालूंगा। तो वैसे लोग यहाँ पर लाओ, फेयर इलेक्शन, दारूवाला साहब। जो लोग इलेक्शन, Sir, what about ED? In Daruwala your sahab. opinion, sir, what about ED? In your opinion, in my opinion, ED should go back to its original charter. Investigate all the drug smugglers, investigate the Financial terrorism. financial terrorism, investigate who the terrorists are and where the money is going. That's my opinion, sir. बाकी सबके लिए बाकी सब You got सक्षम है। various 100 agencies. सर SFIO है, there is serious fraud investigation organization है, EOW है, CBI है, इनकम टैक्स है, सब है सर। But who's going to bell the cat? कौन करेगा? सर ये नार्को टेररिज्म पे इन्वेस्टिगेट करिए ना सर। व्हाट डू यू थिंक? Correct. No, I totally agree with you, sir. आज drugs has become such a big menace Yes, over here. yes. Youth is going wasted. आने वाली जो नस्ल है वो पूरी वाया जा सकती है, इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान डालना चाहिए। Yes. ये ठीक है, 100-200 जो आप कह रहे लोगों को पकड़े, उसमें से 90% 95% बाइज्जत बरी हो गए, मगर यहाँ पर कितने सारे ड्रग्स आपके आंख के नीचे से भाग के हर गली देश में ड्रग्स बेच रहे, हर हर गली में, हर हर स्कूल स्कूल के के बाहर, बाहर। मैं मानता हर स्कूल के बाहर। ईडी ने उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बेशक दिस इज अ नीड ऑफ द आवर, दिस इज नीड ऑफ द मैनकाइंड। I want to, दारूवाला साहब, I want to ask you, जिस प्रकार से आप स्कीम्स के नाम चेंज करते हो, मनरेगा का नाम चेंज कर दिया आपने जी राम जी बिल, नो, हाउ आर यू डूइंग दैट? आपने बापू का अपमान किया, महात्मा गांधी का अपमान किया, ये राहुल गांधी का चार्ज है आप पर। आपने 100 डेज को 125 डेज कर दिया, थोड़ा सुपरफिशियल आपने विंडो ड्रेसिंग कर दिया और अपना बिल बना दिए। दारूवाला साहब, नहीं ओवर हियर स्कीम्स को लॉन्च करना, पोस्टपोन करना, शॉर्ट करना, उसका नाम चेंज करना, जो सरकार आती है वो सरकार अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चलाना चाहती है, अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को जनमानस तक लेके जाना चाहती है। बेशक वो नेता को ऐसा लगता है कि ये मेरे टेन्योर के अंदर काम हो रहा है तो मेरे पार्टी का नाम होना चाहिए, और इसके अंदर कोई भी तरीके से, मैं मोदी जी के बारे में यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी जी के दिल में जो माननीय महात्मा गांधी, जो हमारे परम पिता है, महात्मा गांधी जी के लिए जो आदर है वो अनटचेबल है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है, किसी ने शंका नहीं। नाम क्यों बदल रहे हैं सर? वो कहते हैं, मोदी जी यहाँ पर कितने ओपनली कहते हैं, मैं मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति महात्मा गांधी जी से लेता हूँ। लेकिन सर नाम भी बदल रहे हैं सर। अशोक यादव जी, आप बताएं सर। कुर्मी, पीडीए वर्सेस कुर्मी। अशोक यादव जी, पीडीए वर्सेस कुर्मी। पंकज चौधरी जी को ओबीसी जिस फेस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इज इट गोइंग टू डेंट योर पीडीए? क्या ये पीडीए पर अटैक है? कुर्मी वर्सेस पीडीए पूरे कैलकुलेट करके बीजेपी ने यह मुंह खेला है। अशोक यादव जी, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पंकज चौधरी इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए, ही इज ओनली स्टैचू ऑफ पीडीए, ही इज ओनली स्टैचू ऑफ पीडीए। और ये स्टैचू कैसे हैं कि इनकी जो कठपुतली वाला डांस आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे धागा पकड़ के ऐसे डांस कराता है कठपुतली, उसी टाइप के पंकज चौधरी हैं। उनका पीडीए का मतलब कुछ है ही नहीं। भाजपा सिर्फ पीडीए को दिखाने के लिए पीडीए के लोगों को आगे करते ही है, लेकिन सारा काम वो पीडीए खिलाफ करती है। दूसरी बात, अभी दारूवाला साहब ने बोला, कई बात बोला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं, ये वो दिस दैट। देखिए, जो स्लोगन्स होते हैं, आप विज्ञापन देखते हैं हम लोग कि ये क्रीम लगाने पे काला आदमी गोरा हो जाता है, देखते होंगे विज्ञापन में, उसी तरह का इनका नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। इस तरह के स्लोगन्स हैं। ये बेसिकली ये एडवर्टाइज मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते थे, ये एडवर्टाइज मैनेजमेंट का चीज है ये, इसका कोई सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जिस तरह से दिखाया जाता है फिल्मों में कि इस कहानी के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका कोई सार्वजनिक जीवन से सरोकार नहीं है, इसको मात्र एक संजोग समझा जाए, उसी तरह से इनके स्लोगन्स को मात्र संजोग समझा जाए। ये स्लोगन सब इमेजिनरी होता है। और महात्मा गांधी जी के प्रति कितना मोदी जी के मन में प्यार है, आपको मैं बताऊं, 2017 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने जो अपने कैलेंडर पर से गांधी जी का नाम हटा दिया, उनका फोटो हटा दिया था और उसके जगह मोदी जी का फोटो लगा दिया था। ये इतना प्यार मोदी जी के मन में गांधी जी के प्रति है। और आरएसएस का देखिए राजीव जी, आरएसएस 1948 30 जनवरी 1948 आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, लेकिन उनका जो नेम है, उस नेम को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और नेम पर भी अटैक कर रही है सरकार। क्यों अटैक कर रही है?
क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हमेशा चले और भाजपा हमेशा असत्य और हिंसा, मतलब वायलेंस और असत्य, ये दो इनकी विचारधारा है। इसमें गांधी जी को टॉलरेट नहीं कर सकते। गांधी जी का हिंदुत्व, हिंदुइज्म जो है स्वामी विवेकानंद का हिंदुइज्म था, आरएसएस का हिंदुइज्म नफरत का हिंदुइज्म है, बंटवारे का हिंदुइज्म है, इसलिए गांधी जी की विचारधारा से लोग इतना नफरत करता है। Sir, RSS was acquitted by two commissions. The two commissions that were established to investigate whether or not the RSS had any role in Gandhiji's assassination, acquitted the RSS, gave them a clean chit. They said they had nothing to do with it. और इनफैक्ट नथुराम गॉडसे, अगर आप उसके लेख पढ़ें, वो आरएसएस के खिलाफ बहुत लिखता था सर, आरएसएस के खिलाफ था। वो तो एक जमाने में आरएसएस में था, लेकिन आरएसएस के खिलाफ लिखता था और हिंदू महासभा में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नथुराम गॉडसे और गोपाल गॉडसे जी का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। गोपाल गॉडसे जी ने ये जरूर कहा मुझको, ये 1983 की बात है, कि भाई हाँ, हम पहले आरएसएस में हुआ करते, संघ के लोग मिलते जुलते थे, लेकिन संघ की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। उनका तो बहुत ही एक्सट्रीम था, उनका तो भाई भारत के अंदर कोई मुसलमान दिखना भी नहीं चाहिए, ऐसे उनकी आइडियोलॉजी थी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। द फैक्ट रिमेन्स, आई नीड टू पुट दिस एब्सोल्युटली क्लियरली, आरएसएस हैड नथिंग टू डू, दैट्स व्हाट द कमीशन फाउंड विद गांधीजी's assassination। प्रदीप जी, आई वांट टू आस्क अशोक यादव जी, यूपीएससी, जो यूपीपीएससी अखिलेश यादव जी ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज इज नॉट टॉलरेबल, इट इज अनडेमोक्रेटिक, जो स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से आप देखते हो? बिकॉज बीजेपी सेज ओवर रिएक्शन है। देखिए प्रदीप जी, जो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाह रहे थे सरकार के सामने। और फंडामेंटल प्रॉब्लम दो तीन थी। एक तो थी जो माइग्रेशन कैप हटाने की बात वो कर रहे थे कि हमें माइग्रेशन कैप जो सरकार लगा रखी है हमारे ऊपर, उस कैप को हटाया जाए, जिसके वजह से वो अदर स्टेट्स में जाकर के अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे स्टेट्स के लड़के, उनसे कम मेरिट वाले बच्चे आके यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर जा रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने जो डिमांड रखी थी सरकार के सामने कि जो है ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, जो इनकी जो कट ऑफ मेरिट बनती है, उस कट ऑफ मेरिट की ट्रांसपेरेंसी नहीं छात्रों को पता कि कट ऑफ कितना जाएगा। जो ओबीसी के छात्र हैं, जो एससी एसटी के छात्र हैं, उनकी कट ऑफ जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है, अनारक्षित कैटेगरी है, उनसे ज्यादा कट ऑफ उनका हो जा रहा है। इस बात को लेकर के डिमांड रख रहे थे। और इसके अलावा तीसरी डिमांड वो रख रहे थे कि हर एग्जाम में अप्रॉक्स 10% रॉन्ग क्वेश्चन यूपीपीएससी जानबूझकर डालता है। हर एग्जाम्स में, प्री के एग्जाम में 10 से 12% का गलत क्वेश्चन यूपीपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में डाल देता है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं। और जो रिवाइज्ड आंसर की आंसर शीट है जो छात्रों को मिलनी चाहिए, वो रिवाइज्ड आंसर शीट भी नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर के था बेसिकली छात्रों का आंदोलन। तो सरकार को जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करनी है कि उनकी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स थी, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत बात मांग कर रहे थे, वो जेन्युइन डिमांड्स को सरकार नहीं पूरी कर रही है, बल्कि जो अंग्रेजी हुकूमत भी इतना बर्बरता से नहीं काम करती होगी जिस तरह से छात्रों को बाल पकड़ के खींचा गया, उनको पीटा गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो इस तरह से इस देश में, इस खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक डिक्टेटरशिप स्टेट जो है योगी सरकार ने चला रखा है कि अगर आप जनहित की बात करेंगे, आप जेन्युइन इश्यूज उठाएंगे तो आपके ऊपर लाठियां पड़ेगी। और 83 पेपर्स लीक हो चुके हैं। कल अभी हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि अब तक उत्तर प्रदेश में टोटल 83 पेपर लीक हो चुके हैं। और किसी पेपर लीक वाले माफिया के घर बुलडोजर चला क्या? किसी सिंगल, अभी सबसे ज्यादा बड़ा पेपर लीक माफिया ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में जो बेदीराम है, उसके कितने सारे ऑडियो वीडियो सब कुछ पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दे रही है, कब सिरप माफियाओं को संरक्षण दे रही है। और अभी दारूवाला साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई अधिकारी नहीं करता है। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश में 2.5 या 3% का कमीशन का क्या रेट था उनका, उसी में नप गए। और नप नहीं गए, सरकार ने उनको कहीं छुपा दिया। वो अभिषेक प्रकाश तो एक बस वो कमीशन का खेल तो उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया उनको लेन देन में, इसीलिए सरकार की निगाह पे चढ़ गए। आप उत्तर प्रदेश का करप्शन और कास्ट दो ही पहचान बन चुकी उत्तर प्रदेश की, एक जातिवाद, एक भ्रष्टाचार। जी, और यहां पर जाने के पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करने के पहले, पाकिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त खबर सर लीक हुई है, प्लांट हुई है रॉयटर्स पे।
और रॉयटर्स सीम्स टू बी द एजेंसी ऑफ चॉइस ऑफ द पाकिस्तानीज। ऑपरेशन सिंदूर में भी और अभी भी बॉन्डी बीच के ऊपर, बॉन्डाई बीच जो सिडनी में है, उसके ऊपर जो 16 लोगों को मारा गया, अब ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, इंडियन थे। बाकी सारी दुनिया कह रही है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस खुद कह रही है that both of them were of Pakistani origin, but Reuters has actually carried a story saying that they are from the city of Hyderabad of India, forgetting the fact that there is a Hyderabad in Pakistan also. मेरा ये कहना है दारूवाला साहब, इस पे जरा सतर्क रहिए। The Pakistanis invariably win the social media battle. आपको मैं फिर बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने, हमारे डीआरडीओ ने, इसरो ने, इंडियन आर्मी ने सर 19 के करीब उनके एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किए, बट पाकिस्तान वाज एबल टू सेल दिस थियरी दैट दे वर एबल टू ब्रिंग डाउन 7 ऑफ आवर रफाल जेट्स। मैंने कहा 7 क्यों 70 बोल दो यार, ऐसी क्या बात है। सो बी वेरी केयरफुल सर, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। थैंक यू gentlemen, thank you very much for joining us, great pleasure as always. You wanted to say something Darwala sir? Please go ahead sir, go ahead, don't Yeah, go. I'm in Uttar Pradesh right now. Yes. I'm here. I've been called over here. मैं एक बात यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी का अंत ये अब शुरू हो चुका है। जी। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यहाँ पे दोपहर में प्रेस क्लब के अंदर, लखनऊ के अंदर हजारों संख्या से मुसलमान जो है, अल्पसंख्याई लोग जो है, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। Wonderful. ये उत्तर प्रदेश की जमीनी हालत में आपको कह रहा हूँ। जी। समाजवादी पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मत के ऊपर, मुसलमानों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इनके साथ बाकी सारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं, जो भी हिंदूज हैं, जो भी अन्य कास्ट के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। जो बचे कुचे मुसलमान हैं, उसको यहाँ पर लाने का काम अली दारूवाला, भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी मोर्चा करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक काया पलट होने वाला है। योगी जी के नेतृत्व के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जैसा कांग्रेस मुक्त भारत हुआ था, वैसा सपा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। Gee, right. Thank you so much, sir. But whatever I've told you, please inform whosoever you have to inform that the Pakistanis are planting the story that both these gentlemen, Sajid and Naveed, were both from India. And Reuters has actually created that story. I'm not joking. This is going to snowball. BNK, you wanted to say something? BNK, I want to ask BNK ji, 15,000 jad tapovan mein, they already planted it. 15,000 trees. Now, do you think the fantastic step जो काटने वाले थे, उससे ज्यादा planting हो रहा है तपोवन में? Do you think the BJP government is doing a good job there? The list of plants that were cut were in the forest department. Those trees need to be cut in a stipulated time. ये न्यूज़, हकीकत न्यूज़ कभी भी विरोधक सामने नहीं लाती। आपने 15,000 जाद प्लांट किए दारूवाला साहब। You वो have तो कर planted. दिया। जो एक मिनट, जो एक काट मिनट, रहे एक थे हम मिनट। लोग, जो हम काट रहे एक थे, मिनट। वो इंडेंजर्ड लिस्ट के बाहर के झाड़ थे। But you have done a good job. That's what I'm saying. I'm telling BN Kumar ji because he's also an environmentalist. So BJP has planted देखिए 15,000 trees. ठीक है, प्लांट के ठीक है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? क्योंकि जब भी ये हाँ, कंपेंसेटरी जब भी कंपेंसेटरी प्लांटेशन होता है, उसमें कहा जाता है कि the project proponent who is doing it should maintain it for 7 years. 7 साल काफी नहीं है एक छोटे सैपलिंग को बड़ा होने के लिए, पेड़ होने के लिए, उसका पूरे फल देने के लिए, पूरे ऑक्सीजन जितनी क्षमता की ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोड्यूस करने की है। वो एक बात है। और while on this tree plantation and pollution, I want to make a very important announcement, क्योंकि अभी ये कांग्रेस मुक्त भारत, ये मुक्त भारत, वो मुक्त भारत चल रहा है। पोल्यूशन मुक्त भारत कभी होंगे हम लोग। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी युवा पीढ़ी ने एक पहल उठाई थी यहाँ पर नवी मुंबई में। on Saturday, on the December 20th, youngsters have come together. They'll be holding a silent human change. Gee. Right. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Great pleasure talking to you, Darwala Sahab. But please be careful. Reuters is an agency which has to be pulled up, or you should boycott it. They are only carrying whatever the Pakistani government sources tell them, sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Jai Hind. Namaskar. Jai Maharashtra. Har Har Mahadev. Thank you. No, really. I mean, if you look at it, look at the bias in all the Reuters very right stories. thing that you highlighted. They say that these guys were from Hyderabad in Telangana.
अरे दे आर फ्रॉम लाहौर यार, उसके बाद हैदराबाद में रहते थे, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस हैज सेड दे आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, उसके बाप के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडिया कहां से आ गया बीच में यार, मेरा ये कहना है। और रॉयटर्स बोलता है नो दे वर इंडियन, जस्ट लाइक रॉयटर्स सेड दैट 7 Rafales वर ब्रॉट डाउन। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? Very frankly speaking, all government agencies which actually subscribe to Reuters should end their subscription right now. Nothing hurts any of these American agencies like money. I'm telling you again, stop giving them money, they'll come crawling to you. Let's be very clear. I don't know why we are not doing it. In any event, that's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो। Please subscribe to the channel. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind. Jai Hind.